We are beginning with the second plenary session where we are going to discuss about three aspects, that is natural farming, ecotourism and Vedic perspectives and sustainable development. I request Madam Leena Mehendale to come this side. Now, Srimati Leena Mehendale is an accomplished administrator, thinker and writer. She is acquainted with all parts of India and travelled over 400 out of 650 districts in India. Proficient in Hindi, Marathi, Bengali and understands Assamese, Oriya, Punjabi, Gujarati, Nepali, Maithili, Bhojpuri too. After completing MSc Physics and working as lecturer for a year, joined the IAS in 1974. While in service, she pursued her studies to acquire MSc Physics from Patna University in 1970, MSc Project Planning from University in the UK, MBA GJ University Hissar and LLB Bombay University. Some of her services highlights are Program of Economic Rehabilitation of Devdasis while working as Collector Sangli and MD of an industrial corporation, WMDC. For energy conservation, undertook mass awareness through a TV serial of 180 weekly episodes and radio serial of 250 episodes, thus creating a huge clip bank on skill building and conservation. Training for policies and scheme designs during the work at Yashoda, YCMOU. Worked throughout for promoting Indian languages on computers. As a thinker and writer, she has given over 1,000 lectures, authored 25 books, diverse subjects and over 600 articles in Marathi, Hindi and English. A concept designer and guide for many TV, radio and YouTube serials on atomic physics, energy conservation, holistic health, women empowerment, use of computers, promotion of Samkirtan and Indian languages. Today she is among us to address about ecotourism and Vedic perspectives and sustainable development. Now I invite Sudarshan Das ji to join for the second plenary session. Sanat Kumar Prabhuji. Mr. Sudarshan Das, a social activist cum thinker, formerly the Registrar of KIIT University, Dean and Director of University, is leading a people's movement called Mahanadi Bachao Andolan in Orissa, a columnist. And Mr. Das is a student of sociology and his credit has been reading many social organizations including Orissa Environment Congress. He was a Senate member of Utkal University and was elected to the Students' Union of Utkal University. Our Sanat Kumar Prabhuji, who is from GEV, he was a lawyer, 25 years in society, agriculture and rural development is his main area of work. So today he is going to talk about organic farming and natural farming. This session will be chaired by Dr. Rajendra Singh ji. I request Rajendra Singh ji to come this side. I think he will have to do the dual role because Dr. Sawant, who was supposed to be the moderator, he is now sitting and formulating the policies for river rejuvenation. So Dr. Rajendra Singh ji will take charge of chairman as well as moderator. But in the beginning itself, I would like to request Sudarshan Das ji to give his presentation as he has to catch flight and he has to leave early. So I request Sudarshan Das ji. Thank you, madam, and welcome to this presentation on Mahanadi, which is called as the lifeline of Odisha. And many of you might be knowing about Odisha, which is the eastern part of the country, which touches Bay of Bengal. Before making a short presentation on Mahanadi, I will just focus on only two sentences. Looking at the topic of this, vastness of the topic of this workshop, I would say, in the history of human civilization, if you look at, there was a question, and the answer of this question actually shook the world. What is that question? The question was whether the sun revolves around the earth or earth revolves around the sun. And it was Nicholas Copernicus who gave the answer, and that was the turning point of the human civilization. And in 21st century, if you look at, that kind of a question is posed before the humanity. The question is whether economy is the first or central point of development
and ecology revolves around that, or the vice versa. Whether economy is the subset of ecology or ecology is the subset of economy. That kind of a question is now posed before the humanity in 21st century. And if we cannot answer this question rightfully at this point of time, perhaps the human civilization has to repent, and I don't know what will happen to it. With this, I would draw your attention to this presentation, short presentation. A kind of a movement I am leading, not me as per se, but many persons of Odisha like me, they are leading this movement called Mahanadi Bachao Andolan. It is an offshoot of a people's platform called Agami Odisha. Agami means future, the future of Odisha. And next. Yeah, if you look at this river, it's a very interesting river. And perhaps till now, the most, the cleanest and perennial river in the eastern part of the country. Mahanadi it originates from Chhattisgarh, a state called Chhattisgarh, at the upper catchment, and then it flows to the Bay of Bengal, and touches after Chhattisgarh it touches Odisha, and from Odisha it touches the Bay of Bengal. If you look at the length of the river is 851 kilometers. And the catchment area, if you look at, is 1,41,700 square kilometers. And this river, the basin of this river touches 5 states, which includes Odisha, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Maharashtra, and Jharkhand. They are the 5 states where the drainage of the water comes and fills the river Mahanadi. If you look at, there was a national project, many of you might be knowing. This national project was established on Mahanadi, that was called Hirakud Reservoir. And it was inaugurated by the then Prime Minister, the first Prime Minister of our country, Mr. Jawaharlal Nehru. And while inaugurating this, this national project, he had said that it is the first temple of development. That was the kind of word that Jawaharlal Nehru at that point of time used. And at that point of time, I am not going to the details because it will take some more time. But if you look at that point of time, 1947, when this project was initiated, there was some commitments for different aspects of development. There are 3 purposes for which this Hirakud Dam was constructed. 1, for flood control. 2, for irrigation, and 3rd, it was for generating electricity. These are the 3 main objectives, and for that there was some commitment that this amount of water is needed for Hirakud Dam to sustain itself and to fulfill its commitments. What is now today? Why we are so disturbed? The people of Odisha and many of us, we are disturbed. Why? Because in the upper catchment of Hirakud Reservoir, if you look at, these are the 7 barrages that has come up in from 2011 to 2017. In these years, there are 7 barrages, very big barrages have been established by Chhattisgarh government. If you calculate the barrages and dams and diversion projects in the tributaries of Mahanadi in Chhattisgarh, then the number would be around 800, 900. One cannot think of. And very interesting is, if you look at these barrages, these are not built by the government. These are built by the government for sure, but for the entire money spent has been collected from the industries. These barrages are not meant for the farmers.
These barrages are not meant for the drinking water purposes. Absolutely, these barrages are built to quench the thirst of the industries. And on this ground, you see the kind of, the barrages I was talking about, the allocation of water, and if you look at the spending on those, each of the barrages, then there is a mismatch. What mismatch? When they apply to the government of India for approval, for the environmental approval, environmental clearance, they have shown these projects as category B projects. That means for which there is no need of environment clearance from Environment Impact Assessment Authority, Government of India. In lieu of that, they have shown it as a small projects, category B projects, and they have approached the Chhattisgarh State Impact Assessment Authority, that means SIA, and got permission for this. But in reality, if you look at the amount of money spent, the size of the project, the hugeness of the barrages, the number of gates that has been there, those are category A projects, big projects. And that is the crux which we are very much afraid of, and on which we have gone to the NGT, and NGT has given us very encouraging judgments. After those projects which has been operationalized just last year, if you look at the flow of water in Mahanadi to Hirakud, from Chhattisgarh to Hirakud, then you will find a sharp decline. In last May, there is a calculation that the inflow to Hirakud from Chhattisgarh after these barrages, it has reduced by 76% in last May. And if you look at the kind of, if in the last May, if it is 79% reduction of water, then subsequently we are very afraid. The people who are in the lower catchment, that means Odisha, people of Odisha, and around 65% of the population of Odisha depend on Mahanadi, because Mahanadi is like a lifeline for the entire state. 15 districts that depend on Mahanadi. And if you look at for the drinking water, for irrigation, for electricity, for other or overall development, if you look at Mahanadi is almost a kind of a mother to the entire state and its population. So that's why when we see that in last May, there is a reduction by 79% of the water flow, then it actually makes us, afraid what will happen to us after few years. That's the question that is being posed by the people, to the people. That already I have explained this. And this also, I have already said how the water flow has been reduced after this barrages are constructed. And on this, there is a case in there is a case in Supreme Court. The government of Odisha has gone to Supreme Court with a petition or with an application that the projects which are there on Mahanadi should be stopped and should not be operationalized. And number two, they have demanded that there should be a tribunal for Mahanadi. That's the kind of appeal they have made in the Supreme Court. But we have gone to, I have gone to NGT, National Green Tribunal, with this appeal that let the e-flow of Mahanadi be maintained. Everybody is asking for the share on the share of water on the river. But we are saying that before you ask for share, let us see what is the share of the river. And the share of the river is what? Share of the river is its e-flow. And when we say e-flow, it includes two things. One is quantity of the flow
and two, the quality of the flow also. If the river is only having flow without having its quality, that means all polluted water is flown, then it's not e-flow, it's not environmental flow. So my application before the NGT is that please maintain the e-flow of Mahanadi river, ensure that the e-flow is maintained. And number two that I have mentioned that, you know, in the river basin, there are 6-7 hotspots. You might be knowing Chilka Lake. Chilka Lake is the largest, you know, brackish lake in the entire Asia. And it's full of biodiversity. There is a huge biodiversity, unit called Satkosia, where there is a tiger sanctuary. There is crocodile sanctuary also in this whole basin. So those are to be, you know, protected, and I have requested, applied to the NGT to see that those biodiversity units are to be preserved. And finally, that the rights of the people over water security in context of Mahanadi is to be also protected. These are the 3-4 appeals I have made before the NGT, and NGT has already given an order whereby NGT had said that 31 projects out of 81 they have submitted to the NGT, 31 will not be operationalized till further order. That kind of judgment that has come. These are the hotspots in the basin of Mahanadi. These are the delta. If you know, the delta is one of the biggest delta in the country, in the subcontinent. It's bigger than your Ganges also. Ganga delta se bada hai. I'm not going to all those details. Finally, I would like to say that from here, we are, inviting all experts, those who are working on the river and water sectors, scientists, activists throughout the country. We are inviting them on 5th, 6th and 7th to Bhubaneswar. And this will be a kind of a national consultation on Mahanadi. And the former Chief Justice of Odisha High Court and former Justice of Supreme Court, Mr. Justice Gopal Gowda, is going to inaugurate this national workshop on 6th and 7th. And we also invite people from here also to come, join and suggest us what could be the, amicable solution of Mahanadi dispute. Because we are committed and we have said that we don't want Mahanadi to be Kaveri. A Kaveri-like situation where Tamil Nadu and Karnataka, they are fighting each other. We don't want that kind of a situation whereby we want to say that Mahanadi jodti hai, todti nahi. Mahanadi actually connects two states, Chhattisgarh and Odisha, religiously, culturally, socially, economically also. So we want to say, no, Mahanadi does not, disconnect us. Mahanadi connects us. And that's why we want to say, we don't want to see Mahanadi as Kaveri. We don't want to see a kind of a situation which is we see today between Karnataka and Tamil Nadu. Rather, we want to see a peaceful solution to the whole dispute that has come up. And I request moral support, as well as all other support, including your, knowledge-based support also to the whole issue that we are taking up. Thank you very much for this time, for this presentation. आपने देखा कि विकास का विनाश ये पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज हमें लड़ाती हैं. जियो कल्चरल बाउंड्रीज हमें जोड़ती हैं. द बाउंड्री ऑफ river and boundary of the
geo-cultural. They are linking our brain and heart with earth and with nature. But always the political boundary and administrative boundary, they create the boundary and they disintegrate our love, affection and respect of each other. So this is the case in Odisha and Chhattisgarh. This is the same case like Kaveri River, Tamil Nadu and Karnataka. So now a new struggle, now a new conflict arises in my country. So I told him, the slogan for this movement, हमें कावेरी जैसा विवाद नहीं चाहिए. हम महानदी के लोग मिलकर एक हैं. हम उड़ीसा और छत्तीसगढ़ अलग अलग नहीं हैं. मैंने इससे कहा है कि तेरे से अब कोई पूछे तो तू ये मत कहना कि तू उड़िया है, तू कहना कि मैं महानदी का बेटा हूं. यदि तू कहेगा उड़िया है तो दूसरा कहेगा मैं छत्तीसगढ़ी हूं, तो लड़ाई शुरू होगी. तो ये जो स्टेट बाउंड्रीज हैं इनको हमें खत्म करना है और हमें एक लव, अफेक्शन एंड रेस्पेक्ट वो बढ़ाना है फॉर ईच अदर. ओके, और लव, अफेक्शन एंड रेस्पेक्ट कमिंग विद जियो कल्चरल बाउंड्रीज रेस्पेक्ट. ये जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज हैं ये हमारे दिल को भी तोड़ती हैं, हमें बांटती भी है, लड़ाती भी है. इसलिए इसको हमें ठीक करना है. मुझे लग रहा है कि उनकी बातचीत के बाद इनकी बातचीत ज़्यादा सार्थक होगी, एक एक्टिविस्ट और एक एडमिनिस्ट्रेटर. तो हमारी लीना बहन अपनी बात वो बाद में रख लेंगे, क्योंकि उनकी बातचीत के बाद क्योंकि आप टूरिज्म पे भी बोलने वाली है ना, तो आपका थोड़ा रिलेशन बैठेगा इसके साथ. सो मैं लीना बहन को इनवाइट करता हूं. लीना बहन अपनी बात रखें. सबको नमस्कार. मैं अपनी बात हिंदी में कहना चाहूँगी. अगर कहीं किसी को लगे कि थोड़ा समझने के लिए मुझे क्लैरिटी के लिए कहना ज़रूरी है तो बताइए, तो मैं इंग्लिश में कहूँगी. सबसे पहले मैं चाहती हूँ एक छोटी 4 पंक्तियाँ सुनाने के लिए परमिशन चाहती हूँ. ये एक्चुअली एक कविता मैंने लिखी थी ताकि मेरे पोते को भारत की नदियों के बारे में कुछ पता चले. तो कविता इस प्रकार है. हर हर गंगे भागीरथी. ये सबको पता है कि हम नहाने के समय इसको कहते हैं. हर हर गंगे भागीरथी, गोदावरी गंडक और गोमती. ये गोदावरी गंडक गोमती, ये उसको गो सिखाने के लिए. ये भागीरथी, गोदावरी, गंडक, गोमती, मतलब सारे उसमें पहलू थे. हर हर गंगे भागीरथी, गोदावरी गंडक और गोमती, यमुना सिंधु सरस्वती, ब्रह्मपुत्र और धनाशिरी, चंबल नर्मदा और तापी, वर्धा नर्मदा साबरमती, कृष्णा भीमा इंद्रायणी, पेरियार अड़ियार कावेरी, सरयू चिनाब और सतलज, बियास झेलम और रावी, इतनी नदियाँ पानी लाती, प्यार से हमें नहलाती. लेकिन आज मुझे यहाँ आकर के लग रहा है कि इसकी अंतिम 2 पंक्तियों को बदलना पड़ेगा और हमें कहना पड़ेगा कि इतनी नदियाँ पुकारती, बचाओ बचाओ की गुहार लगाती. तो सवाल केवल एक महानदी या एक इंद्रायणी. अभी इंद्रायणी पे प्रेजेंटेशन किया नीरी ने. इंद्रायणी नहीं, सॉरी, चंद्रभागा क्लीनिंग अप का प्रोजेक्ट लिया. गोदावरी का प्रोजेक्ट चल रहा है, यमुना का चल रहा है, गंगा का चल रहा है. मुझे याद आता है जब मैं स्कूल में थी
अभी मैट्रिक भी नहीं पास किया था, 64 के आसपास की बात होगी। तब मेरे पिताजी के एक सज्जन, मेरे पिताजी के दोस्त घर पे आए। तो जैसे हम लोगों को भी कौतूहल लगा कि ये करते क्या हैं, तो उन्होंने बताया कि वो गंगा रिवर क्लीनिंग प्रोजेक्ट में उनकी नियुक्ति हुई है एज अ चीफ इंजीनियर पटना में। तो ये मैं 1962-63 की बात कह रही हूँ कि गंगा रिवर क्लीनिंग के प्रोजेक्ट को हम तब से सुन रहे हैं और आज भी सुन रहे हैं और पता नहीं आगे कब तक सुनेंगे। तो अभी मैं नीरी की जो यहाँ पे शालिनी जी दिख नहीं रही कहीं, अच्छा आप हैं। तो मैं शालिनी जी से चर्चा ये कर रही थी कि हमारे यहाँ विकास की परिभाषा जो है, वो विकास की परिभाषा ऐसी है, अभी आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि इकोनॉमिक्स आधारित हमारी विकास की परिभाषा है या इकोलॉजी आधारित हमारी विकास की परिभाषा होनी चाहिए। तो चूँकि परिभाषा इकोनॉमिक्स आधारित है और हम अगर अपने देश में किसी से सवाल पूछते हैं, जो बड़े बड़े अर्थतज्ञ हैं उनसे पूछते हैं, तो कहते हैं कि नहीं सारे संसार में यही परिभाषा चलती है कि जीडीपी बड़ा हो तो इकोनॉमी बड़ी और जीडीपी अगर बड़ा हो तो समृद्धि बड़ी। इकोनॉमी बड़ी हो इससे मुझे मतलब नहीं है। इकोनॉमी, हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है तो इकोनॉमिक टर्नओवर भी बहुत बड़ा होगा, उससे मुझे मतलब नहीं है। लेकिन जब हम जीडीपी को समृद्धि के साथ जोड़ते हैं, विकास के साथ जोड़ते हैं, तो क्या परेशानी होती है वो मैं बताना चाहती हूँ। मान लीजिए कि आप बीमार पड़ गए, आपकी दादी हैं घर में, उन्होंने आपको कोई अच्छी सी दवाई दे दी जो कि उनके अनुभव के आधार पर है और आप ठीक हो गए। तो देश का जीडीपी नहीं बढ़ा क्योंकि आप उठ करके डॉक्टर के पास नहीं गए, डॉक्टर ने फीस नहीं चार्ज की, आप दुकान में नहीं गए दवाई की, वहाँ से दवाइयाँ नहीं खरीदी, उसकी दवाई नहीं बिकी, तो उसका टर्नओवर कम हो गया, डॉक्टर का टर्नओवर कम हो गया, तो देश का जीडीपी नहीं बढ़ा। तो देश कहता है हाय रे हाय, ये तो बिना जीडीपी बढ़ाए ठीक हो गया बंदा। ऐसे लोग तो देशद्रोही कहे जाने चाहिए, है ना। तो जब आप बीमार पड़ने के बाद डॉक्टर के पास जाते हो, बहुत पैसा खर्च करते हो, बहुत दवाइयाँ खाते हो, तो आप देशभक्ति का काम करते हो क्योंकि जीडीपी बढ़ाते हो। तो उसी तरह से नदियों का भी हम वही कर रहे हैं कि हम पहले पोल्यूटेंट्स को उठा उठा करके नदी में पहले डालेंगे, ताकि पोल्यूटेंट यहाँ से उठा करके वहाँ ले जाना पड़ा तो ट्रक का खर्चा पड़ा, ट्रक की ट्रांसपोर्ट बनी, ट्रक पे डीजल खर्च हुआ, उसका खर्चा हुआ, बहुत पैसा खर्च किया, फिर हमने नदी में सारा डंप कर दिया। फिर हमने कहा कि अरे ये तो अब नदी खराब हो गई, अब इसको सुधारने के लिए अब उसको वापस से बाहर निकालो, फिर खर्च करो, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करके दूसरी जगह ले जाओ, फिर उसको ट्रीटमेंट करो, तो ब्यूटिफिकेशन भी करो तो भी खर्च ही करो। तो जब आप इस तरह से जब खर्च करते हैं तो देश का जीडीपी बढ़ता है और फिर हम डंके की चोट पे कहते हैं कि देखो देश का जीडीपी बढ़ा मतलब देश समृद्ध हो गया या देश विकसित हो गया। तो सबसे पहले तो हमें, मुझे लगता है कि इस बात को चैलेंज करना पड़ेगा कि क्या ये विकास की सही हम व्याख्या कर रहे हैं। और अच्छा, दूसरी बात विकास की व्याख्या में और एक आती है जो कि अभी अभी सुदर्शन जी ने भी उसकी तरफ इंगित किया। अगर आप कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेते हैं तो आपका सम्मान बढ़ता है, अगर आप बहुत छोटा प्रोजेक्ट लेते हैं तो आपका सम्मान घट जाता है। तो सरकार में अभी क्या हो रहा है, और ये मत सोचिए कि मैं रिटायर हो गई हूँ इसलिए कह रही हूँ, ये जब मैं सरकार में थी तब भी मैं ये कहती थी। सरकार में क्या होता है कि एक व्यक्ति है, वो चाहता है कि मुझे प्रमोशन मिलते रहें, अच्छे रिमार्क्स, मेरे सीनियर ऑफिसर मेरे बारे में कुछ अच्छा लिखते रहें हमारे एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में। तो अब मैंने मान लो कि एक प्रोजेक्ट में
प्रोजेक्ट दे दिया सरकार को ये कह करके कि ये हमारी एक कोई पानी की समस्या है, लेकिन इसको मैं मिनिमम से मिनिमम 1.5 लाख रुपए के खर्च में मैं इसको पूरी कर सकती हूँ ताकि लोगों को पानी मिलता रहे। एक दूसरा ऑफिसर है, वो कहता है कि इस पे मैं 15 लाख का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। एक तीसरा ऑफिसर वो कहता है कि मैं इस पे 15,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। तो ACR में बेस्ट रिमार्क उसको जाता है जो कहेगा मैं इस पे 15,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ। उसके कंपैरिजन में मैं कहूँ कि मैं 1.5 लाख रुपए में ये समस्या दूर कर सकती हूँ, तो मुझे कहा जाएगा जल्दी से जल्दी VRS ले लो मैडम, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। तो सरकार में आज पूरी समस्या ये हो गई है कि हर कोई बहुत बड़ा काम करना चाहता है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लेना चाहता है। पुराना प्रोजेक्ट, मान लो मैं किसी पोस्ट पे नई ट्रांसफ़र होकर के आई, मेरे पहले वाले अफसर ने अगर कुछ किया है, कुछ शुरू किया है, मैं अगर उसको कंप्लीट करने में अपना समय गंवा दूं तो मेरा क्रेडिट कहाँ गया भाई? जो भी वो प्रोजेक्ट पूरा होने पर क्रेडिट जाएगा तो उसको जाएगा कि अरे उसका प्रोजेक्ट था। तो मैं कहती हूँ कि इसको डंप ही कर दो तो अच्छा है। मैं अपने नाम से एक शिलालेख मेरा लगे, है ना। मेरी एक हमारे यहाँ मराठी के एक बहुत अच्छे कवि हैं, उन्होंने एक बहुत सुंदर कविता 4 पंक्ति की लिखी थी, कौन शिला। अभी मैं कविता सुनाने के मूड में नहीं हूँ, पर उसका मतलब यही था कि हर आदमी आता है और वो केवल ये गिनता है कि मेरे कार्यकाल में, अब चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, वो केवल ये गिनता है कि मेरे कार्यकाल में मैंने कितनी कौनशिलाएँ लगवा दी। बाकी प्रोजेक्ट पूरा होता रहे या नहीं होता रहे उससे कोई मतलब नहीं। तो जो आदमी पैसे के लिए काम कर रहा है वो तो कहता है बड़ा से बड़ा प्रोजेक्ट लाओ ताकि मेरी जेब में बड़ी सी बड़ी उसकी शेयर आ जाए। पर जो आदमी पैसे के लिए नहीं काम कर रहा है, ऑनेस्टली काम कर रहा है, वो भी अपने नाम का लालच छोड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इतना थोड़ा सा भूमिका बना करके मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ कि मुझे 2 टॉपिक्स पे बात करने के लिए कहा गया है। एक तो इको टूरिज़्म और एक है वैदिक कंसेप्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो मुझे लगता है कि ये 2 सब्जेक्ट्स अलग हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो भी वैदिक पर्सपेक्टिव था या वैदिक पर्सपेक्टिव है और हमारा टूरिज़्म का पर्सपेक्टिव क्या है, मैं थोड़ा सा हम आज के टूरिज़्म के पर्सपेक्टिव पे मैं बात करना चाहूँगी। और ये हम ज़्यादातर मैंने देखा कि गोवा में ये बहुत रिसेंटली बहुत बड़े पैमाने पे हुआ है, तो मैं गोवा का एग्जाम्पल कोट करना चाहती हूँ। वैसे है हर जगह कि गोवा में क्या हुआ कि टूरिज़्म के नाम पर उन्होंने कहा कि अब गोवा में लोग आते हैं सृष्टि का सौंदर्य देखने के लिए, नेचुरल सराउंडिंग, नेचुरल ब्यूटी देखने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ हम उनको गोवा की जो ओरिजिनल जो हमारी ट्रेडिशंस हैं, वहाँ की जो फिलोसॉफिकल साइट्स हैं या कल्चरल साइट्स हैं, रिलीजियस साइट्स हैं, वो हम उनको दिखा सकते हैं। जैसे मंगेशी टेम्पल है, ये बहुत पुरानी वहाँ की केव्स हैं, पुराने टेम्पल्स हैं। मंगेशी टेम्पल है, शांता दुर्गा टेम्पल है, ब्रह्म टेम्पल है, आपका पांडव लेणी है। मतलब पूरे गोवा में कहीं भी, छोटा सा है इलाका, कहीं भी चले जाओ पर वहाँ पर आपको मैथोलॉजिकल साइट्स जिसको हम कहते हैं, वो आपको अनगिनत मैथोलॉजिकल साइट्स वहाँ मिलेंगी, और जो कि अभी पोल्यूट भी नहीं हुई हैं। सो वहाँ का सी बीच बहुत अनपोल्यूटेड है या था। लेकिन अच्छा, गोवा की अपनी एक खाद्य परंपरा है, तो उसकी जो कुजिन है वो बहुत ही रिच कुजिन है। तो हमारा, और गोवा में फॉरेस्ट कवरेज, पूरे भारत में जो फॉरेस्ट कवरेज है ऑन एन एवरेज 16% फॉरेस्ट कवरेज है, जबकि गोवा का फॉरेस्ट कवरेज 36%। सो इतना रिच फॉरेस्ट कवरेज उसको मिला हुआ है। समुद्र है और विदिन हाफ एन आवर आपको हिल टॉप पे भी
जाने का मौका मिलता है। तो आपको हर तरह का वहाँ पर जोग्राफिकल लोकेशन भी आप देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे टूरिज़्म किस तरह से बिल्डअप होना चाहिए, यहाँ ट्रेकिंग साइट्स बनाइए आप, पहाड़ के ऊपर नीचे चलने की, साइकिल मैराथन्स के लिए वहाँ पे बहुत अच्छा स्कोप है जो कि नॉन पोल्यूटेंट है लेकिन स्पोर्ट है। वहाँ आप क्विज़िन है वो कर सकते हैं। वहाँ 3-4 अलग अलग रिलीजियस ट्रेडिशंस का मिलाप है, जैसे पोर्तुगीज वहाँ थे तो कैथोलिक हैं, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, हिंदूज़ हैं, हिंदू में भी कई अलग अलग तरीके के हैं। मराठी लोग गोवा में बसे हैं उनका कल्चर अलग है, जो कर्नाटकी लोग वहाँ बसे हैं उनका कल्चर अलग है, जो कोंकणी है वो कल्चरली अलग हैं। तो देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ कल्चर ऑल्सो। तो हमारा जो टूरिज़्म होना चाहिए गोवा में वो इस प्रकार से होना चाहिए कि हम किसी भी नए आने वाले आदमी को इन सब बातों से हम गोवा का परिचय कराएं। लेकिन गोवा का टूरिज़्म एसेंशियली सुबह जो उनकी बस निकलती है वो किसी एक चर्च को ले जाएगी, किसी एक टेम्पल को ले जाएगी, खाना खिला देगी, शाम को एक सी बीच दिखा देगी और उसके बाद 5 बजे के आसपास वो सारे को ले आती है एक बोट पर और उस क्रूज़ पर वहाँ पे शुरू में ये कहा गया कि इस क्रूज़ पर जो ट्रेडिशनल गोवानीज डांसेस हैं जो कि मछुआरों के डांसेस हैं वो डांसेस और वो गीत, और उसमें एक बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन है जो ट्रेडिशनल मछुआरे गीत प्लस पोर्तुगीज म्यूज़िक, उसका बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन है। इट्स वेरी वेरी प्लेजेंट। वो हम सिर्फ करेंगे, पर धीरे धीरे विदिन 1 ईयर ये हो गया कि क्रूज़ पर हम लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए हम कैसीनोज भी चलाएंगे। और शुरू में ये कहा गया कि ये कैसीनोज चूँकि हम शोर पर नहीं किसी को हम बताना चाहते हैं, या शोर पे जो लोग हैं, किनारे पे जो लोग हैं, लैंड पर जो लोग हैं, उनको हम कैसीनो की तरफ नहीं ढकेलना चाहते हैं, तो द क्रूज़ विल गो इनसाइड द रिवर मांडवी, नहीं मांडवी और दूसरी कौन सी है, नहीं मांडवी रिवर है। तो मांडवी रिवर में हम अंदर में हम क्रूज़ को ले जाएंगे, बोट को ले जाएंगे और वहाँ पे लोग कैसीनो खेलेंगे। तो शुरू में एक किसी को परमिशन मिली तो तुरंत उसके जो दूसरे राइवल रिच लोग थे उन्होंने कहा कि हम भी चलाते हैं। तो आज ये हालत है कि गोवा में दिन में रात में 24 घंटे नदी के अंदर बोट्स क्रूजेस खड़ी हैं, 100 से भी अधिक क्रूजेस हैं, कैसीनो हैं, ड्रग्स हैं, सेक्स रैकेट्स हैं और पूरी की पूरी रिवर, एक तो मांडवी रिवर और दूसरी एक और रिवर है जो उसके साथ मिल करके फिर दोनों समुद्र में जाती है। रिवर्स आर हाईली पोल्यूटेड एंड दिस हैज़ हैपन्ड ओनली ड्यूरिंग लास्ट 10 to 15 ईयर्स। तो जहाँ हम अपने बॉटनिकल डाइवर्सिटी को दिखा सकते थे, जहाँ हम अपने फॉरेस्ट डाइवर्सिटी को दिखा सकते हैं, जहाँ हम अपने फूड डाइवर्सिटी को दिखा सकते हैं, जहाँ हम अपनी कल्चरल डाइवर्सिटी को दिखा सकते हैं, उसकी जगह पे हम एक मोनोटोनस कैसीनो बेस्ड टूरिज़्म हमने गोवा में प्रमोट किया। और प्रायः हर जगह अगर आप जाओ तो टूरिज़्म के नाम पर आपको 7 स्टार होटल्स मिलेंगे। और कई बार ये होता है कि आप यहाँ से पुणे के किसी 7 स्टार होटल से निकलो और अगरतला के किसी 7 स्टार होटल पे पहुँचो, फिर दिल्ली के 7 स्टार पे पहुँचो, फिर चेन्नई के 7 स्टार पे पहुँचो, आपको पता ही नहीं चलेगा आप किस सिटी के किस होटल का खाना खा रहे हैं, सारा एक जैसा है। तो इस मोनोटोनी को हम प्रमोट कर रहे हैं इन द नेम ऑफ टूरिज़्म, जबकि हमारे टूरिज़्म पे फोकस होना चाहिए हमारी कल्चरल साइट्स, हमारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स, हमारी ट्रेडिशनल जो हमारे, अब टेक फॉर एग्जांपल जस्ट द इशू ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स।
इन इंडिया हमारे पास मैन्यूस्क्रिप्ट्स के भंडार अलग अलग जगहों पर पड़े हैं। हम क्यों नहीं एक ऐसी टूरिज्म की बात कर सकते हैं जो केवल मैन्यूस्क्रिप्ट्स देखने के लिए बन रही हूँ। या मैं तो ये कहती हूँ कि लुक एट द वास्ट एक्सपांस। जोग्राफिकली हमारा इतना बड़ा देश है, तो हम केवल ये सोचते हैं कि नहीं कोई फॉरेनर आएगा तो वो बेचारा बोर हो जाएगा तो उसके लिए कैसीनो चाहिए। हम ये नहीं सोचते कि हम देश के अंतर्गत भी तो टूरिज्म हमारा होना चाहिए और है। हमारे यहाँ तीर्थों की जो परंपरा थी वो टूरिज्म के लिए थी, और टूरिज्म के कारण हमारे तीर्थ यात्रा हुआ करती थी, या कह लीजिए तीर्थ यात्रा के लिए टूरिज्म हुआ करता था। दोनों म्यूचुअली एक दूसरे के पोषक थे, पर उसके कारण हमारी कल्चरल इंटीग्रेशन हो रहा था, कल्चरल यूनिटी हमारी बढ़ रही थी। आज अगर सुदर्शन जी ये कह सकते हैं कि मैं महानदी का बेटा हूँ, और चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ का आदमी भी यही कहे कि मैं महानदी का बेटा हूँ, और एक बेटा दूसरे बेटे के साथ भाई भाई का रिश्ता बना करके व्यवहार करे, ऐसा अगर वो चाहते हैं तो हमें वो कल्चर पनपाना होगा, और वो इस टूरिज्म के माध्यम से हो सकता है। क्यों ना हम छत्तीसगढ़ के बच्चों की टूर लेकर के आए महानदी के एंड तक, ताकि उनको लगे कि ये पूरी महानदी एक है। हमारे देश में नदियों की परिक्रमा की बात होती थी, और कितने पुराने ज़माने में, मतलब महाभारत काल में ये लिखा है कि जब बलराम ने कहा कि मैं लड़ाई में हिस्सा नहीं लूँगा, लेकिन उनको दुख भी हो रहा था कि इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है, तो उस दुख से बचने के लिए उन्होंने कहा कि मैं सरस्वती की परिक्रमा करूँगा। और वो निकले द्वारका से और वहाँ पहुँचे जहाँ सरस्वती का उस ज़माने में उगम बताया जाता था, और उगम से लेकर के द्वारका तक उन्होंने सरस्वती की परिक्रमा करी। तो नदियों की परिक्रमा का जो रिवाज हमारे यहाँ है वो इसी बात के लिए है कि उस नदी पर बसने वाले तमाम लोग जो हैं वो आपस में एक भाईचारा को समझें, इस भाईचारे को समझें। अगर मैं रिवर के ऊपर कमांड उसमें रह रही हूँ, कैचमेंट एरिया में बहुत टॉप पे मैं रह रही हूँ, और मुझे पता ही नहीं है कि नीचे जो लोग रह रहे हैं डाउन स्ट्रीम में उनका लाइफ कैसा है, या उनका लाइफ कैसे डिपेंडेंट है इस नदी पर, तो मैं कभी भी उनके लिए सोचूंगी नहीं। मैं कहूँगी कि मुझे यहाँ पर बारात चाहिए ताकि मेरा जीवन सुरक्षित रहे या मेरा जीवन सफल हो। तो जिस हम वैदिक परंपरा की बात करते हैं, तो हमारे वैदिक परंपराओं में मतलब कई कोटेशंस किए जा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा आता था भाईचारे का। तो आप देखेंगे कि जितने हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं, सब में जो छोटी छोटी शुरू की प्रार्थनाएं हैं, उन प्रार्थनाओं में एक प्रार्थना कई बार आती है, और वो प्रार्थना है सहना ववतु सहनौ भुनक्तु, कि मैं और आप दोनों की रक्षा ईश्वर एक साथ करे, हमें उपभोग की सामग्री एक साथ मिले, सह वीर्यं करवावहै, हम कोई यश देने वाली यशदायक बात दोनों मिल करके एक साथ कोई शौर्य का, वीर्य का, पराक्रम का काम हम एक साथ करें, और माँ विद्विषा वह, हमें आपस में एक दूसरे से विद्वेष ना हो। ये हमारी प्रार्थना प्रायः हर एक उपनिषद में हमारी ये प्रार्थना हुआ करती थी। संगच्छध्वम, ये हमारी प्रार्थना हुआ करती थी। दो आदमियों के लिए प्रार्थना थी सहनावतु, दो लोगों के लिए, द्विवचन में है वो पूरी प्रार्थना, और संगच्छध्वम, दो के बाद आप अपनी कम्युनिटी को बढ़ाइए, आप सबको उसमें शामिल करिए, तो संगच्छध्वम की बात आती थी कि हम जो भी करें हम सब एक साथ मिल करके करें। तो ये टीम बिल्डिंग का कंसेप्ट था, और इसी टीम बिल्डिंग के साथ साथ अभी आज राजेंद्र जी कह रहे हैं कि हमारी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज के कारण हम तोड़ो की बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल 100% इससे सहमत हूँ कि हमारे देश की बाउंड्री कभी किसी राजा के पॉलिटिकल बाउंड्री से आइडेंटिफाई नहीं हुई। हमारे देश की बाउंड्री कल्चर के साथ आइडेंटिफाई हुई है। जहाँ जहाँ वैदिक कल्चर है, जहाँ जहाँ वेदों की मान्यता है, जहाँ जहाँ वेदों में बताया गया धर्म ही धर्म कहा जाता है,
और वो धर्म है प्रकृति के साथ मेल करके रखना, प्रकृति के साथ जोड़ करके रहना। तो इसलिए हमारे यहाँ वानप्रस्थ की परंपरा थी। आज हमारा जो पूरा जीवन है वो फिर से एक बार मोनोलिथिक, एक तरफा हो गया है। पहले हमारे यहाँ हर व्यक्ति के लिए 3 आश्रम कहे गए थे। बचपन में ब्रह्मचर्य आश्रम कि तुम घर से बाहर जाओ, गुरु के पास जाओ, वहाँ रह करके पढ़ाई करो, फिर वापस आना घर। तो गुरु के यहाँ जाने के लिए उसे नेसेसरीली वानप्रस्थ वन में जाना पड़ता था। और अगर बहुत सारे बच्चे वहाँ नहीं जा सकते तो भी एक कहीं ना कहीं छोटे छोटे गुरुकुल हुआ करते थे, तो गुरुकुल में जा कर के पढ़ाई करो। फिर गृहस्थ आश्रम में वापस घर में आओ, घर को संभालो, गांव को संभालो, समाज को संभालो, देश को संभालो, ठीक है, समृद्धि लाओ। फिर वानप्रस्थ आश्रम, दोबारा सब कुछ छोड़ करके दोबारा जा कर के जंगल में रहो, वहाँ जा कर के अध्ययन करो, अध्यापन करो, शोध कार्य करो, कुछ भी करो। फिर संन्यास आश्रम कि वापस गांव में और शहरों में आओ और घूम घूम करके सबको जो तुमने पढ़ाई की वन में रह करके या जो तुमने गृहस्थ आश्रम में अनुभव कमाए उसके आधार पर, लेकिन अपनी आइडेंटिटी को भूल कर, उस आइडेंटिटी का अहंकार, मोह या दंभ छोड़ करके तुम वापस आओ। तो हमारे यहाँ टूरिज़्म की जब हम बात करते हैं तो हम कई चीज़ों को भूल करके हम अपने टूरिज़्म की पॉलिसी बना रहे हैं। और हमारी टूरिज़्म की पॉलिसी जो हमारे देश में, जैसे मैंने बताया कि विकास की एक थोड़ी सी गलत व्याख्या करके हम उस चक्र में बिल्कुल दलदल में धंसे जा रहे हैं, उस तरह से एक और भी दूसरा चक्र है। वो दुष्ट चक्र ये मानता है कि जहाँ संपत्ति है और जहाँ संपत्ति का शो है वही सब कुछ है, उसके आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ नहीं है। तो इस प्रयास में होता क्या है कि हमारे पूरा जो टूरिज़्म है वो 7 स्टार ओरिएंटेड टूरिज़्म है, वो इको ओरिएंटेड टूरिज़्म नहीं है। तो मुझे याद आता है नासिक में एक बहुत कठिन चढ़ाई चढ़ करके एक मंदिर पे जाना होता है जहाँ जो सप्तशृंगी का मंदिर है। और किसी ज़माने में मैं गई, बड़ा रोध हो करके, लेकिन चढ़ करके गए। अभी रिसेंटली मैं फिर गई सप्तशृंगी के मंदिर में, तो बस सर्विस थी, बस से बिल्कुल ऊपर तक अंतिम 5 सीढ़ियाँ केवल मुझे चढ़नी पड़ी मंदिर के अंदर जाने के लिए। और पूरा मंदिर जो है वो सीमेंटेड है, दीवारें सीमेंट की, फ्लोर सीमेंट का, सीढ़ियाँ सीमेंट की, हर चीज़, हर जगह आपको सीमेंट 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 दिखेगा। जहाँ पहले पूरा नेचुरल काला पत्थर हुआ करता था, उसको किसी ने गढ़ा वढ़ा नहीं था, जो जैसा है वैसा ही रखा था, और वहाँ पर देवी की मूर्ति थी। तो अब हमारे यहाँ नारियल फोड़े जाते हैं, देवी को प्रसाद चढ़ाया जाता है, सब कुछ फूल चढ़ाए जाते हैं, मतलब काफ़ी हम देवता के लिए कुछ ले करके जाते ही हैं। तो जब वहाँ पे पूरा नेचुरल रॉक हुआ करता था तो वहाँ कभी भी गंदगी नहीं होती थी, और नेचुरल रॉक होने की वजह से हम अगर पीछे जूते खोल करके हम चलने भी लगे तो वो कभी तपता नहीं था। लेकिन ये 5 सीढ़ियाँ जूते नीचे खोल करके 5 सीढ़ियाँ सीमेंट की चढ़ करके जाने में मुझे लगा कि मेरे पैर जल रहे हैं। तो हम क्यों इस तरह का टूरिज़्म चाहते हैं? अगर आपको लगता है कि नहीं, बहुत लोगों को बहुत दिक्कत होती है इतनी लंबी 700 के आसपास सीढ़ियाँ चढ़ने में, तो ठीक है, आप हाफ वे तक कहीं पे बना दो, पर ये जो पूरा नेचुरल मंदिर था उसको आपने सीमेंट में बना करके क्या अचीव किया? बट पूरी की पूरी वहाँ सीमेंट के कारण गंदगी दिखती है। तो हम पूरे, और हमने ये क्यों किया? क्योंकि सीमेंट का बना देने से हमारे धन का वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन होता है। तो ये जो हम इस एक चक्र में और उलझे हुए हैं कि धन और धन का प्रदर्शन ही हमें आगे ले जा सकता है, ये हमारे जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, और जो बच्चे हैं
जो आने वाली युवा पीढ़ी है उस पर ये बहुत बुरा असर डाल रहा है। ये पूरा वो भी सोचते हैं कि केवल जहाँ धन का प्रदर्शन नहीं है वहाँ पर कोई लाइफ नहीं है, तो फिर वो अलग अलग तरीके से जहाँ धन का प्रदर्शन है उसके मोह में पड़ करके अब फिर हम उड़ता पंजाब जैसी समस्या सुनते हैं, फिर हम और तरह की समस्याएं सुनते हैं। जलवायु परिवर्तन और इसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत भेद है। जो परिवर्तन अंतरिक्ष में हो रहा है, जो परिवर्तन हमारे पूरे पर्यावरण में हो रहा है, उसी प्रकार का एक परिवर्तन हमारे अपने निजी जीवन में भी इस तरह से हो रहा है। तो हमारे वेदों की परंपरा क्या बताती थी? तो अगर एक वाक्य में कहना हो तो यहाँ कई बार कहा गया कि पंच महाभूत हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, है ना। तो 5 हमारे पंच महाभूत हैं, उनका सम्मान करो, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर मैं मानती हूँ कि अपने आप कुछ नहीं होता है, हमें उसके प्रिंसिपल्स जानने पड़ेंगे, उसके सिद्धांत जानने पड़ेंगे, उसके तरीके जानने पड़ेंगे और वो तरीके हमें अपने जीवन में उतारने होंगे। कार्य के बिना कोई सिद्धि नहीं होती है। तो हमने सिद्धांत तो सीख लिया, पढ़ लिया, किताबों में पढ़ लिया, हमने उस पर अमल नहीं किया तो फिर कोई उसका परिणाम नहीं। तो इसलिए हमारे जो वैदिक सिद्धांत हैं वो हमें बताते हैं कि ये बेसिक फिलॉसफी है, ये प्रोसीजर है और ये तुम्हारे नित्य जीवन की दिनचर्या में उतरना है। ये तीनों का जब मेल होगा तब तुम्हारा इको कंजर्वेशन हो सकेगा, अन्यथा नहीं हो सकेगा। तो अब एक उदाहरण मैं देना चाहती हूँ कि वेदों में ये कहा गया है कि 2 बातें कही, मतलब कई बातें कही हैं, मैं उसमें से 2 बातों की ओर इंगित अभी करना चाहती हूँ। कि पहली बात उन्होंने कही कि नदियों को स्वच्छ रखो। नदियों को स्वच्छ रखना ये समाज की जिम्मेदारी है और नदियों को स्वच्छ रखने के लिए नदी के किनारे पे पेड़ होने चाहिए, ताकि पेड़ों की, अभी नीरी के यहाँ से प्रेजेंटेशन में आप बार बार ये बता रहे हैं कि हम रूट्स को वहाँ तक, नदी तक ले जा रहे हैं ताकि नदी का पानी रूट्स के मार्फत बहे और रूट्स के पास वो सारा एब्सॉर्ब हो जाए। तो हमारे यहाँ कहा गया कि नदियों को बचाने के लिए, नदियों को शुद्ध रखने के लिए नदियों पर पेड़ लगाओ। और पेड़ केवल पेड़ से बात नहीं बनेगी, ऊंचाई पर पेड़ लगाओ। तो समतल नदी बह रही है, वहाँ पर हमने पेड़ लगा दिए, उससे उतनी अचीवमेंट नहीं होगी जितनी पहाड़ों पर अगर हम पेड़ लगाएं तब होगी। तो नदियाँ पहाड़ से आ रही हैं तो नदियों के मुहाने पर पेड़ होने चाहिए। आज जब मैं छोटे छोटे ग्राम पंचायतों में जाती हूँ, छोटे छोटे गाँवों में जाती हूँ, ग्राम पंचायत है, बैठ करके सब लोग चर्चा कर रहे हैं। किसकी चर्चा कर रहे हैं? तो भाई पानी मिलना चाहिए, पानी की समस्या है। ठीक है, लोगों में जागरूकता है, मुझे बड़ी खुशी मिलती है। तो फिर अब क्या करने वाले हो? तो फिर हम यहाँ एक छोटा बांध बना देंगे तो इतना पानी रुकेगा, फिर इससे इतना हमें इरिगेशन में फ़ायदा होगा, वगैरह वगैरह। जितनी ये सारी मीटिंग्स होती हैं, जितनी सारी चर्चाएं होती हैं, राजेंद्र जी मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि इसको थोड़ा आप गौर से सुनिए। जो गांव में भूमिहीन हैं, जो गांव में पशु हैं और जो गांव का पर्वतीय इलाका, चाहे वो छोटा ही हिलॉक क्यों न हो, उस गांव के पास जो भी छोटा सा एक अगर टीला भी है, उसका जो टॉप पोर्शन है, वहाँ पर ये 3 चीज़ें ऐसी हैं, टॉप ऑफ द हिल, पशुधन और भूमिहीन किसान, भूमिहीन खेत मजूर। ये 3 ऐसे 3 ये लोग हैं, आइडेंटिटीज़ हैं कि ग्राम पंचायत में इनके बारे में कभी कोई चर्चा या इनके बारे में कोई विचार नहीं होता है। तो जब हम पानी की बात करते हैं और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर की बात करते हैं, तो हमारी लीगेसी तो ये है कि ब्रिटिशों ने पानी के ऊपर कर लगाया
कि जो आदमी इरिगेशन के लिए जितना पानी लेता है उसके ऊपर वो पानी पट्टी उस ज़माने में बैठाई गई थी। तो इरिगेशन जो सिंचाई करने वाला किसान है उसकी सिंचाई पर जब हम पानी का कर लगाते हैं और उसको हम गारंटी भी देते हैं कि तुमसे हम इतना कर ले रहे हैं, तो इट इज़ द गारंटी ऑफ द गवर्नमेंट कि तुम्हें पानी बराबर मिलता रहेगा। तो दैट इज़ द गारंटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो इस पूरे फिलॉसफी में जिसके पास ज़मीन है उसी का हम विचार कर रहे हैं, जिसके पास ज़मीन नहीं है उसको हम गिन ही नहीं रहे। तो ब्रिटिश काल से लेकर के आज तक आफ्टर इंडिपेंडेंस जितनी हमारी पानी के डिस्ट्रीब्यूशन की विद इन द विलेज जो हमारी पॉलिसी बनी, या विद इन अ शॉर्ट एरिया जो हमारी पानी की पॉलिसीज़ बनती हैं, उसमें हम केवल उनकी बात करते हैं जिनके पास ज़मीन है। तो फिर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ? तो हमें ये अपनी डेफिनेशन भी बढ़ानी होगी, इसका विस्तार करना होगा। अगर हम वैदिक परंपरा की बात करते हैं तो हमारे वेदों की परंपरा का सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो भी करो वो समष्टि के लिए करो, पूरे समुदाय के लिए करो, पूरे समाज के लिए करो। तो एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं छूटना चाहिए जिसको आपने आपकी प्लानिंग के कंसिडरेशन में नहीं रखा है। तो ये सबसे एक पहली बात है। दूसरी बात जो हमारी वेदों की परंपरा से आती है, अब मैं वेदों में कई तरह से कहा गया है कि भूमि को हम किस प्रकार डिटीरियोरेशन से बचाएं, जल को हम किस प्रकार खराब होने से बचाएं, उसकी प्यूरिटी की हम कैसे रक्षा करें, वायु के प्यूरिटी की हम कैसे रक्षा करें, अंतरिक्ष के प्यूरिटी की हम कैसे रक्षा करें, और अग्नि के प्यूरिटी की हम कैसी रक्षा करें। तो इस प्रकार के काफ़ी उदाहरण हमें मिल जाएंगे। अभी हम लोगों ने एक बड़ी अच्छी स्लाइड देखी, रेड एनर्जी, ग्रीन एनर्जी और ब्लू एनर्जी। और रेड एनर्जी अगर है तो वो जीवन को फलने फूलने नहीं देती है, ग्रीन या ब्लू एनर्जी अगर है तो वो जीवन को फलने फूलने देती है, जीवन के लिए वो पोषक होती है। तो जिस तरह से ये हम एनवायरनमेंट के रेड, ग्रीन और ब्लू एनर्जी जोन्स की बात करते हैं, उस तरह के हमारे वैदिक ग्रंथ कहते हैं कि उस तरह के जोन्स हमारे हृदय के अंदर भी होते हैं। और जब हम दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति की बात करते हैं, संपत्तियां दोनों हैं, दोनों ही में संपत्ति है, प्रदर्शन है, धन है, लेकिन अगर वो आसुरी संपत्ति है तो वो समाज को पनपने नहीं देगी। वहाँ पर सत्ता वर्सेस समाज जहाँ आ जाता है, और जहाँ समाज की अपेक्षा सत्ता को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, वो हुई आसुरी संपत्ति। जितने भी हमारे यहाँ असुरों का वर्णन है, कोई भी असुर बल पराक्रम में कहीं कम नहीं था, कोई भी असुर संपत्ति में कहीं कम नहीं था, कोई भी असुर सत्ता में कहीं कम नहीं था, कोई भी असुर शस्त्रास्त्र के ज्ञान में कम नहीं था, कोई भी असुर तपश्चर्या में कम नहीं था। तो तपश्चर्या तो उसने भी की, लेकिन किस लिए की? वो रेड एनर्जी के लिए की। तो उससे वो समाज आगे नहीं जा सकता है। इसलिए हमारे यहाँ वेदों में दैवी संपदा और आसुरी संपदा, इस दोनों को डिस्टिंग्विश इसलिए इस तरह से किया जा रहा है कि दैवी संपदा वो है जो संपत्ति तो है लेकिन वो समाज के लिए है, समष्टि के लिए है, वो दैवी संपत्ति है। और जो अपने लिए है और केवल अपने लिए है और केवल अपने आप को और ज़्यादा बड़ा करने के लिए है, वो आसुरी संपत्ति है। तो ये सारी चीज़ें अब चूँकि अब हमारा ये सारा हमारा दर्शन है, और मुझे ये पता है कि कई विदेशी लोग हमारे यहाँ आते हैं, वो ये दर्शन सीखने के लिए, इस दर्शन को समझने के लिए वो आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कोई भी एयरपोर्ट पर आप बताइए कि किसी भी एयरपोर्ट पर उतर करके कोई भी विदेशी अगर पूछे कि मैं भारतीय दर्शन को समझना चाहता हूँ, 2 मिनट्स, मैं भारतीय दर्शन को समझना चाहता हूँ तो मैं कहाँ कहाँ जाऊँ? कहीं आपको
वो आपके टूरिज्म मैप जो होता है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिवली टूरिज्म मैप की बड़ी वैल्यू मानी जाती है, तो टूरिज्म मैप में हमें वो जगहें लानी होंगी जहां हम अपनी फिलॉसफी की बात कर रहे हैं। दूसरा हमें इंटरनल टूरिज्म को बढ़ावा देना पड़ेगा। एक प्रांत से दूसरे प्रांत का टूरिज्म, और वो भी उस प्रांत की कल्चरल डाइवर्सिटी को समझते हुए अगर हो। मैं आज कह सकती हूँ अगर कि कोई व्यक्ति अगर यहाँ खड़ा होकर के बात करने लगे और वो नेपाल से अगर है, तो मैं उससे पूछूंगी कि तुम विराटनगर से हो या पोखरा से हो, क्योंकि उसके टोन से मुझे इतना डिस्टिंक्शन पता चल जाता है कि वो पोखरा डिस्ट्रिक्ट से है या विराटनगर से है। तो ये कैसे, ये मेरे पास कोई जादू तो नहीं है, ये घूमने से, ट्रैवलिंग से ये क्वालिटी, ये स्किल आते हैं। तो हमारे बच्चे क्यों इस स्किल से वंचित रहें? तो ये हमें इंटरनल टूरिज्म को इस तरह से बढ़ावा देना पड़ेगा, और सबसे पहले हमें इस इंटरनल टूरिज्म को के साथ बच्चों को हमें दोनों तरह की चीज़ें दिखानी चाहिए। एक, जहाँ जैसे गोवर्धन इको विलेज है, यहाँ हमने इकोलॉजी को कैसे, कंजर्वेशन के किस प्रिंसिपल को हम एक्चुअली यहाँ पर प्रोसीजरली हम इसको सिद्ध कर रहे हैं। और दूसरे वैसी जगह हैं जहाँ पर हम इकोलॉजी को पूरा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कि हमारी नीतियाँ गलत जा रही हैं। तो लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? वी विल हैव टू डू अ लिस्टिंग कि हमारी नीतियाँ गलत कहाँ जा रही हैं, कि किस गलत नीति की वजह से हम आज किस संकट में जा रहे हैं। और ऐसी नीतियाँ की लिस्ट अगर हम बनाने बैठ जाएं तो 1000 से भी ऊपर हमारी नीतियाँ ऐसी दिख जाएंगी जो गलत रास्ते पे जा रही है। लेकिन वो सारे इस एक बात से ड्रिवन हैं कि वो हमें सो कॉल्ड धन की ओर और पैसे खर्च करने की ओर और बड़ी योजना बनाने की ओर वो ले जाती हैं। तो उसका जो आकर्षण है, ग्लैमर और मोह जो है, वो हमसे जल्दी नहीं छूट पाता है। तो इस मानसिकता को जब हम बदलेंगे तब हम सोच पाएंगे कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। तो इसके साथ ही मैं समाप्त करना चाहूँगी। धन्यवाद। Now I request Sanat Kumar Prabhuji with the time bound. We are already running very short of time, but still I would like you to throw light on your topic. 10 minutes. लीना बहन ने जो अपनी लंबी बात रखी, उसको छोटे से स्लोगन में कह सकते हैं कि भारत में प्रकृति की रक्षा करने के लिए पर्यटन नहीं था, तीर्थाटन था। तीर्थाटन से जो ज्ञान बढ़ता है, जो साधना होती है, जो श्रद्धा भाव उमड़ता है, तो हमें यदि प्यार से इस देश को दोबारा स्थापित करना है तो पर्यटन की जगह तीर्थाटन करना होगा। प्रभु जी। All respected dignitaries on the dais as well as all respected participants. So few points will be repeated again and again. But why it's repeated? Because they are the cardinal principles. So as it's all the nations, they are addicted to economic development. But they don't know actually this economic development itself is killing them. Because what is being told us, like every nation is measuring its economic, measuring its development in terms of economic development. So everybody is increasing their consumption. If the consumption increases, then economic development increases, country is considered as prosperous. So one hand, we are going for infinite growth, whereas the natural resources are finite. So it will never happen. At present, we are almost consume 60% of natural resources in this world. So we'll cut the forest and still will be considered as prosperous. There will be some natural disasters. People will get admitted to the hospitals. GDP will increase
and will be considered as prosperous nations. So the prosperity at the cost of environment and the social cause is not long-lasting solutions. So now let's say like we are talking about in between about Vedic tradition and the respecting the nature. So why that is very essential? Because only by this Vedic tradition we will be able to control our greed, control our exploiting propensities. Because what we have to understand that actually the mother nature is complete in itself and all the population in the world can be easily fed and taken care of. Even if we destroy the whole nature, nature has a capacity to rebuild itself. I remember when I was in school in Russia, there was one great tragedy of Chernobyl when nuclear holocaust took place. And what happened is Russian government cordoned off that area. A particular kilometers were cordoned off. And nobody was allowed to go there. Now you can understand that nuclear radiation means everything was gone. All the seeds were gone. So after 25 years, the BBC wanted to know what's happening in that area. So somehow they squeezed in and they could find all the natural vegetation has come back. Even the extinct species are also there. How that could happen? There was only one thing, no human intervention. And that was the reason how all these things could regenerate. Recently I read an article. There was one place they found the seeds were 800 years old, the squash seeds. It was stored in a clay pots and people could grow the squash of that age also. So actually we have all the things given to us by Mother Nature. In Orissa we find that often the cyclone comes, so the salty seawater comes in. But there are particular varieties of rice which go in salty water also. So what we are doing is we are replacing what nature has given us with artificial things and which are not becoming successful. The nature has given us everything. If you just talk about rice, once upon a time in India, only in India there were over 1 lakh varieties of rice. Then you can see how much the whole world had rich biodiversity and about so many cereals and so many vegetables and all those things. So there is Dr. Devildev who is in Orissa and is one person conserving over 1,000 varieties of rice. And many of those varieties of rice are medicinal. It will help us children's brain development. It will help you for fever. It will help you for heart diseases. If you are sick, to recuperate from the bad health. Even if you break your bones, there is a particular variety of rice could help you to heal that. So nature made all those things. We rejected that. And we are going for inventing the golden rice. Because some people thought the people have deficiency of vitamin A, and if you can give in rice vitamin A, and billions of dollars have been spent for that. And still the research shows that it is not successful. The growth of this rice is stunted. Sometimes it shows abnormal growth and the yield is also not sufficient. So if we concentrate on preserving what we have and whatever these wonderful varieties, medicinal and so many aromatic varieties that we have, if you do research on that and increase their productivity by a selection method, spend some amount on that, that will give a good solution. Like what those, I don't know how many of you have visited Rajendra Singh's place in Alwar. If you have visited that place, you could see that just by reviving the traditional technology, he could find a solution to today's people. It's complex solution, how to revive the whole rivers. And he has revived not only one, but 7 rivers without so much funding from the government, with people's participation
And the technique was given by the old person over there. Not a single engineer was involved in that. So sometimes the complex problem may have a simple solutions also. Just if we treasure what we have, and there is international panel of experts on sustainable food systems. So they came up with the report, because now all research in agriculture is done just to increase the yield. But you just don't need yield, you need nutrition also. So their research showed that 2 billion people in the world are suffering for micronutrition deficiencies. So that report was suggesting that instead of having input-intensive monoculture and industrial scale of agriculture, if you diversify and go for agroecological system and try to optimize the biodiversity, that will be the future of the world. So here also we have seen, especially nearby areas where we are working with our villagers, this area, there are so many tribal people and many there are below poverty line. Some of the people have 5,000 rupees income a year. Some of you children made that much, maybe your pocket money for a month. They have 5,000 rupees per year, and we worked with them. We just gave them a simple horticulture solutions. We gave them mango trees and cashew trees, and we told them how you can cultivate in between the land, intercropping, either jasmine floriculture or vegetables. And those farmers who followed this advice, within 1 or 2 years, they could rise above the poverty line. So without any help from government or any other things, if you know the proper way, then you could find solutions to today's problems also. The thing is, one has to remember this agriculture can absorb so many people's employment. Because as populations are increasing all over the world, agriculture can provide so much employment to the people. But what kind of agriculture? Not the industrial scale modernized agriculture, but small farms based on natural inputs can increase the productivity. And of course, agriculture cannot go without the cows and of course water. So if we have a respect for the nature, respect for our mother earth, respect for cows, respect for our rivers, and all together, if you work, then definitely you will get sustainable economic development. Thank you very much. थैंक्स। हमारे दोनों वक्ताओं के नाम से जरा एक बार जोर से तालियां बजाइए। जब एक ऋषि खेती के बारे में बोलता है तो अच्छा लगता है सुन के। मित्रों, मुझे भी इसमें एक प्रेजेंटेशन आप लोगों को दिखाना था। मेरे बहुत मन में है कि मैं आपको बता सकूं कि वैदिक परिदृश्य से हम दुनिया को कैसे बदल सकते हैं, लोगों को कैसे बदल सकते हैं। बट मुझे लगता है समय हो गया, 5 बज गए हैं और प्लेनरी सेशन इस बार थोड़ा लंबा है, क्योंकि इन्होंने जो डिक्लेरेशन बनाया है वो काफ़ी मेहनत करके तैयार किया है, तो उसको सुनना है। पर फिर भी यदि मुझे इजाज़त हो तो मैं 5-7 मिनट में ये आपको दिखा दूं। दोस्तों, ये जो हमारे हालत हैं इस वक्त, इस 21वीं शताब्दी में, 21st सेंचुरी में, इसमें यदि हमें सचमुच, अरे भाई इसको चालू करो, 21st सेंचुरी में यदि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ मूव करना है और एक तरह से ये जो इकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल क्राइसिस है, इस क्राइसिस को ठीक से समाधान करना है, तो 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक तो कम्युनिटी और साइंस, फिजिकल एंड नेचुरल,
विजडम के बीच कोई ब्रिज बन सकता है क्या? ये जो हमारी कम्युनिटी है, इंडियन कम्युनिटी है, उसका जो अपना इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम है, इंडियन विजडम है, उसके बीच में और इस मॉडर्न साइंस के बीच में ब्रिज की संभावनाएं बहुत दिखती हैं, बहुत हैं। मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूँ। ये भारत की जो भूगर्भ की सबसे बड़ी संस्था है हैदराबाद में, उसके डायरेक्टर होते थे A.N. अठावले। उन्होंने वीक मैगजीन में कहीं से पढ़ा कि राजस्थान में नदी रिजुनेट हो गई। ये बात है 95 की। और वो पढ़ के उसने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। 20th सेंचुरी में एक्सट्रैक्शन है, ये झूठ है। ये वीक ने झूठ लिखा, बहुत गुस्से में था। और गुस्से में अपने साथ अपने एक असिस्टेंट डायरेक्टर को लेकर, उनका नाम था डायरेक्टर मुरलीधर जी को लेकर ये दोनों साइंटिस्ट हवाई जहाज में उड़ के, और इनके पास सब नक्शे थे, वो नदी कहाँ है, उस नदी का पूरा चित्र इनके पास था। तो ये हमसे बिना बताए उस नदी में चले गए, और ये नदी जहां से शुरू होती है उस गांव का नाम था भावता पहुंच गए। भावता में इन्होंने देखा यार नदी तो बह रही है। तो फिर लोगों से पूछा कि ये नदी कब से बहने लगी, क्यों बहने लगी, कैसे बहने लगी? तो लोगों ने बताया कि धरती का पेट भर गया तो पानी का लेवल ऊपर आ गया, पानी का लेवल ऊपर आ गया तो नदी बहने लगी। इसमें कौन सा करिश्मा हो गया, इसमें कौन सा मिरेकल है? तो सिंपल बात है, अरे भाई पेट भरता है तो निकलता है ना कहीं। लेकिन ये इतनी सिंपल बात इस देश के सबसे बड़े साइंटिस्ट को समझ में नहीं आई। उसने कहा इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द डिस्चार्जिंग इज इंक्रीजिंग इन द वर्ल्ड रिपोर्ट, डिस्चार्जिंग इज इंक्रीजिंग। तो तुम्हारा ये वर्ल्ड रिपोर्ट के अगेंस्ट कैसे हो सकता है? वो तो सब साइंटिस्ट के दिमाग में ना ये वर्ल्ड की जो कैलकुलेशंस हैं, फार्मूले हैं, वो कहीं सेट हो जाते हैं। फिर वो कोई नई चीज उसको दिखती है तो वो पागल हो जाता है। तो उसने कहा यार तू क्यों परेशान हो रहा है? अर्जुन गुर्जर ने कहा अरे तू क्यों परेशान हो रहा है, लेट, धरती पे लेट, मैं अभी बताता हूं नदी कैसे बहती है। तो उसने कहा क्या करेगा? उन्होंने कहा तेरे पेट में पानी भरूंगा मैं, तू मुंह खोलना, मैं बाल्टी से पानी भरता हूं, देख कहीं से निकलता है कि नहीं निकलता, देख कितनी देर में निकलेगा, ज्यादा ज्यादा आधा घंटा लगेगा निकलने में, तुझे तो निकालना ही पड़ेगा। तो जैसे हमारी धरती वैसे ही हम, हमारी धरती और हमारे अंदर कोई फर्क नहीं है। नेचर ने इस पंच महाभूत से जिसको बनाया है उसका कैरेक्टर एक जैसा है, उसके थोड़े सिस्टम थोड़े फर्क होते हैं, सिस्टम उसके हार्मोन्स थोड़े बहुत जरा डिफरेंट होते हैं, बट उसका फॉर्मेशन 5 एलिमेंट से क्रिएटेड एवरीथिंग, चाहे वो अर्थ हो, चाहे ह्यूमन हो, चाहे जो भी जीव जगत है, वो सब जैसा एक जैसा होता है। तो दोस्तों मेरा कहना यह है कि क्या हम ये देख सकते हैं क्या, अपने लोकल विजडम से ये देख सकते हैं क्या कि ये जो हमारे सामने मॉडर्न चैलेंजेस हैं, इन मॉडर्न चैलेंजेस के क्या सॉल्यूशन हमारी समझ में आते हैं, और ये सॉल्यूशन कैसे होंगे? भाई ये तो चल नहीं रहा है। देखो भारत के लोग पानी को 10 तरह से देखते हैं। भारत के लोग केवल वाटर इज ए लाइफ नहीं कह के छूटते। वाटर हमारा दवाई है, हीलर है, वो हमारी जो हमें जोड़ने का सब काम करता है। ये जो जल है ये अपना लेवल खुद ढूंढ लेता है, और इसका जो माध्यम है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, ये बिल्कुल किसी से बंधा हुआ नहीं है। ये जो 10 हमारे पानी के बारे में भारतीय सूत्र थे, उन भारतीय सूत्रों में पानी की रेस्पेक्ट थी। बस हम दुनिया में सबसे अलग यदि कहीं हैं तो सामंत साहब केवल रेस्पेक्ट में हैं। हमारा जो 5 एलिमेंट के प्रति जो रेस्पेक्ट है उसमें वाटर के प्रति भी रेस्पेक्ट थी। इसीलिए पानी में, दुनिया में तुम किसी भी देश में जाओगे तो वो कहेंगे रिट्रीट, रिसाइकल, रीयूज, बस उनके पास ओनली 3 R है, लेकिन भारत के पास 6 R है। पहला R है रेस्पेक्ट ऑफ वाटर, सेकंड R है रिड्यूस यूज ऑफ वाटर, थर्ड R है रिट्रीट ऑफ वाटर, 4 R है रिसाइकल ऑफ वाटर और रीयूज ऑफ वाटर, एंड 6th फाइनल क्या है
rejuvenate the life with water. So the 6 R we have, ये हमें जरा समझना होगा कि भारतीय दृष्टि क्या है। अब उतना होते हुए भी आज की तारीख में 54% इस देश के सामने क्राइसिस है। ये हमारी मॉडर्न क्राइसिस है। इस मॉडर्न क्राइसिस को देखें तो 13 राज्यों के 317 डिस्ट्रिक्ट में आज की तारीख में ड्राउट है। आज ये ड्राउट है, और ये सारे राज्य हैं जिनमें कुछ ना कुछ हिस्सा हमारे ड्राउट में अभी भी फेस कर रहे हैं हम लोग। इस हिस्से को यदि हम समझें, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखें, तो वो वैदिक दृष्टि से क्या है। गांव के लोग जब अपनी धरती को अपना मान के धरती पर नक्शा बना के देखते हैं कि कहाँ काम करता है, और वो गांव की जो इंजीनियरिंग है वो रिसोर्स मैपिंग से लेके साइट सिलेक्शन, एग्जीक्यूशन, कंट्रीब्यूशन, ये सारे काम इतने अच्छे ढंग से करते हैं कि भारत की इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाला बेस्ट इंजीनियर नहीं कर सकता, जिसको गांव के लोग थोड़ी जरा उसके अंदर रियलाइजेशन हो जाए, इंटरलाइजेशन हो जाए, तो बेस्ट तरीके से करता है। और वो फिर करने के बाद ये जो सब प्रॉब्लम है, जो बड़ी नदियों का सूखना, मरना, सब सरफेस पे जब पानी खत्म होता है तो कुएं सूखते हैं, अंडरग्राउंड पानी खत्म होता है तो ट्यूबवेल सूखते हैं, और डीपर अंडरग्राउंड खाली होता है तो बोरवेल सूखते हैं, और फिर डीपेस्ट अंडरग्राउंड जिसको पाताल तोड़ कहते हैं वो सूखता है, तो हमारा सबमर्सिबल सब सूख जाता है और हम बेपानी होते हैं। और जब बेपानी होते हैं तब नदियां मरती हैं। इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से हम रिजुनेट कर सकते हैं इस पानी को जहां दौड़ता है। मैंने कहा ना, जहां पानी बरसता है वहां दौड़कर चलता है, उसे धीमा चलना सिखा दो। जब वो धीमे चलने लगे तो रेंगना सिखा दो। जब वो रेंगने लगे तो धरती माता का खुला पेट देखकर उसमें बैठा दो। फिर उसको सूरज की नजर ना लगेगी, वो उड़ेगा नहीं। जब तुम्हारा बुरा दिन आए, अकाल आए, पानी की कमी हो, तब उस पानी को निकाल के जीवन चला लो। तो ये जो डिस्चार्ज और रिचार्ज का रिलेशनशिप है, इंडियन लोगों के मन में डिस्चार्ज, चाहे वो अपनी बॉडी से डिस्चार्ज करता हो चाहे धरती से डिस्चार्ज करता हो, दोनों को वो ऐसे ही समझता था कि डिस्चार्ज करने से हमारी हेल्थ खराब होती है, तो हम थोड़ा रिचार्ज करें। रिचार्ज करेंगे तो हमारी हेल्थ भी ठीक होगी और धरती की हेल्थ भी ठीक होगी। तो हम ह्यूमन हेल्थ और अर्थ की हेल्थ को, दोनों को एक साथ जोड़ के देखते थे। अभी जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम आया है उसमें रिवर हेल्थ, सॉइल हेल्थ, अर्थ हेल्थ और ह्यूमन हेल्थ के रिश्ते हमें कोई नहीं पढ़ाता। कोई हमें हमारी समझ में आज तक डालता नहीं है। इसीलिए जैसे ही वो रिश्ते समझ में आए, पानी वहां रोका, धरती के पेट में गया, सबसे पहले कुएं में पानी आ गया, और कुएं में पानी आ गया तो थोड़े दिन के बाद नदी में पानी आ गया। जरा इसको देखो, वो 20 फरवरी का फोटो है, 11 बजे का मॉर्निंग टाइम, और ये भी 20 फरवरी का फोटो है 11 बजे, लेकिन 15 साल बाद। तो धरती का चेहरा यदि आपको बदलना है अपनी लोकल विजडम से, अपने लोकल ज्ञान से, तो जल्दी से बदल सकते हैं। ये देखो, वो जो पेड़ है वो 32 साल बाद वही नदी कैसे बदल गई। कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ता हमें। भारतीय ज्ञान को वैदिक दृष्टि से, वैदिक दृष्टि जब मैं बोलता हूं तो सिंपल बात है कि पंच महाभूतों से निर्मित इस अर्थ को और इस ह्यूमैनिटी को, इन दोनों को एक तरीके से देखना शुरू करें। ह्यूमैनिटी एंड नेचर बोथ, इन दोनों के प्रति एक जैसा रेस्पेक्ट शुरू करें, तो ये दोबारा से हम रिजुनेट कर सकते हैं, दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं। और ये दोबारा से रिवाइव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, ये जो रामू है, ये होली और दिवाली पे नहाता था। होली दिवाली इसके लिए नहाने का त्योहार था। अभी जो है वो एवरीडे नहाता है और 2 टाइम नहाता है, और वो अपने पानी में नहाता है, कूद के, गुच्चक लगा के तालाब में, किसी को पैसा नहीं देता नहाने के बदले में है। ये जो महिलाएं हैं, ये आल ग्वाल से पानी लेके आती थी। कितने घंटे लगते थे? 6 घंटे। अभी तो 6 मिनट में पानी ले आती हैं। किसने किया? कोई बाहर से आके आदमी थोड़ा ही कर गया। कोई कलेक्टर नहीं है हिंदुस्तान में जो ये कह सके कि मैंने अपने जिले में इस तरह का काम किया। सबसे ज्यादा ज्ञान और सबसे ज्यादा पढ़ाई और सबसे ज्यादा पावर हिंदुस्तान में कलेक्टर के पास होती है।
कलेक्टर जितनी पावर किसी के पास नहीं होती, लेकिन नॉट ए सिंगल मॉडल जो आपको कह सके कि उसने 21वीं शताब्दी में नदियों को जिंदा किया। गांव के लोग कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने किया। ये कोई राजेंद्र सिंह नहीं कर सकता, ये भी समझ लो। राजेंद्र सिंह केवल लोगों में विश्वास पैदा कर सकता है कि यार तुम्हारे अंदर ताकत है, खड़े हो जाओ, चलो। और जैसे ही वो दीवानगी आती है, जैसे ही लोगों में वो पागलपन आता है, लोगों के अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है। इसलिए एक दो नदियां नहीं, इस देश की सारी नदियों को जिंदा कर सकते हैं। लेकिन रिवर रैली से नदियां जिंदा नहीं होंगी। नदियों को जिंदा करने के लिए नदियों के साथ दिल और दिमाग जोड़ना पड़ेगा। लोगों का दिल और दिमाग जब नदियों से जुड़ेगा तब नदियां जिंदा होंगी। देखो 1985 में वही जगह है, द सेम प्लेस, द बोथ फोटोग्राफ ऑफ द सेम प्लेस, कैसे बदल जाते हैं। जब पानी नहीं था तो ये लोग गांव छोड़ के शहर जाते थे, जयपुर। अब ये जयपुर के सेठों को रोजगार देते हैं। 270 ट्रक सब्जियां इस पूरी बेल्ट में से, एक गांव से नहीं, पूरी बेल्ट से, एक गांव से 2-3-4 ट्रक जाते हैं। कहां जाते हैं? दिल्ली की आजादपुर मंडी में। कल तक मेरे गांव के लड़के जिन लोगों के यहां मजदूरी करते थे, आज उनको मजदूरी देने के लायक बन गए। किसने बनाया उनको? बस उनके अपने सम्मान ने, वैदिक ज्ञान ने, परंपरा ने, जो उनके पास ज्ञान था उसने। ये तीसरी पीढ़ी है हमारी। उस जमाने में जब हमने काम शुरू किया था, उसके बाद की तीसरी पीढ़ी। इनको पता ही नहीं कि हमारे गांव उजड़ गए थे बेपानी होके, तो इनको बताना पड़ता है। इसलिए मेरा कहना यह है कि इस वक्त इस देश में क्लाइमेट चेंज लिटरेसी और वाटर लिटरेसी ये बिल्कुल जुड़ी हुई हैं। इनको बहुत जोरों से चलाने की जरूरत है। ये जो लड़की है, इसकी बात सुनिए। ये मांगू हनुमान मीणा की बेटी है। इसने कहा, ओ काका, तू ट्रक भर के ले जा छे सब्जी का, गांव का इतना पानी बेच के आवे छे दिल्ली, और पीसा इतना सा लावे छे। तो बोला, काई करे बेटी, सब्जी बोना बंद कर दे के? ना, ऐसी सब्जी बो जिसमें पानी कम खर्च हो। तो ऐसी सब्जी क्या? ऐसी सब्जी है धनिया। धनिया की इतनी सी जड़ होती है, और उसमें स्प्रिंकलर से 2-4 बूंद पानी आया और वो पूरा दिन निकल जाता है। और इसको, धनिया को हमारे बंदर नहीं खाते। धनिया की फसल में से बंदर भाग जाता है, तो बंदरों की आंखों में आंसू आ जाता है जब वो धनिया के पास पहुंचता है। तो ऐसी अच्छी फसल कि उसकी रखवाल भी खुद हो जाती है। दोस्तों, ये 8 नदियां हैं। मैं बस इतना बताना चाहता हूं कि यदि आपको ये काम करना है तो गांव से लेकर रिवर बेसिन लेवल पे करना पड़ेगा। और यदि रिवर बेसिन लेवल पे करोगे तो लोगों को जरा संगठित करना पड़ेगा, और उनके जो अपने डिसिप्लिन हैं, जो उनके दस्तूर हैं, उनको हम लोगों को आगे लेके आना पड़ेगा। इसलिए मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, आखिर में, कि हम यदि भारत की धरती को सुखी और समृद्धि के रास्ते पर लेकर आना चाहते हैं, वो है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वो डेवलपमेंट है डिस्प्लेसमेंट, डिस्ट्रक्शन और डिजास्टर फ्री डेवलपमेंट। उसमें से तीनों डी खत्म करनी पड़ेंगी। जिसमें डिस्प्लेसमेंट होता हो, डिस्ट्रक्शन होता हो, वो डिजास्टर ही पर पहुंचता है। और डिजास्टर ये है कि आज़ादी के बाद 8 गुनी बाढ़ और 10 गुना सुखाड़ इस देश में बढ़ गया है। इसको यदि हमें रोकना है तो हम लोगों को संगठित होकर अपने गाँवों से अपना पानी का काम करना पड़ेगा। यदि हम वो काम करेंगे तो हमें लगता है कि हमारा जो अनुभव है वो हमें हमारी धरती को ठीक से बदल देगा, और वो अनुभव हमारे समझ में आ जाएगा कि ये अरबी सागर से उठने वाला पानी कैसे हम अपनी ज़मीन पे बरसाने लगे। उस बादल को हवा लेके आई और हमारे यहाँ बरसने लगा। आगे की कहानी मैंने सुबह बता दी थी, इसलिए टाइम बचाता हूँ। धन्यवाद आपको खूब सारा। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ कि वो जो एक वो लेके आओ सम्मान ना, प्रभु जी को हमने दिया ही नहीं। प्रभु जी उधर बैठ गए, सम्मान लेके जल्दी आओ। प्रभु जी आप आ दीजिए। थैंक यू। सो दोस्तों,
मेरा सत्र पूरा हुआ। हमारे महेंद्रा के एक साथी हैं, 2 मिनट में अपनी कुछ बातें जल्दी से रख देंगे। आइए भाई, जल्दी से आ जाओ। Good evening. I am Dr. Pradeep Panigrahi from Mahindra Group. I have actually attended this last year, and I have been hearing about Dr. Rajendra Singh since last 20-25 years, and I always look for opportunities to come and meet him and to interact and to learn more. Incidentally, in my almost 25 years of corporate service, just before joining corporate, I was in NGO. And I was equally, motivated to work for the society. And then I realized people kept saying that, corporates are doing a lot of damage to the ecosystems, and that is true. In more or less, it is true. I have seen that. And then I realized that I must work for the corporates so that I can do something. Because you cannot just go on blaming the corporates if you cannot find out a solution. So then I started working with corporates. So almost 25 years of working in corporates, and we have been doing a lot of things. I'll share a few of the things that we have been doing in corporates. All corporates are not same. Corporates, they do business, they run the economy, and they are kind of backbone to the economic system of a country. But many of the corporates are today, they are realizing that they need to do more than what they're doing. They need to be responsible. They need to do something for the society, for the environment, because resource is limited, and the same resource only drives business. The same resource drives life, same resource drives villages, same resource drives country. So that's the reason why corporates are coming forward. And I'll share a few examples with you how we are making a difference. Mahindra Group is a 19 billion USD group. We have presence in more than 100 countries. 154 companies. We're the largest tractor producer in the world. And that is one part, that is the business part. Coming to the society, coming to the to social contribution part, we have been contributing to the society. At least 1% of the profit goes to the society since a long time, before government mandated it. Government recently mandated 2%, but we have been doing it since last 30-40 years. At least 1%. Now it is of course 2%. As a group, we are water positive, sir. I think I told Dr. Singh. We require 600 million KL of water for the group, 154 companies. But we are conserving 800 million KL of water. So we are certified. We are the only certified water positive company in India. We are the only certified zero waste to landfill company in India. The first company. We are the first company to join the EFI 100. It is called energy productivity. Then that means by 2030, we would have doubled the production, but we will use the same energy that we are using now. That's one of the reason Mr. Anand Mahindra, our chairman, he represents the entire business community throughout the world. He was the only person invited to the United Nations, and he spoke there last year. We are a leader in circular economy, and circular economy, if you please Google, I don't have time to actually explain about it. So in circular economy, waste of one unit or one process becomes resource for another unit. So we've been doing a lot of things on circular economy in the national level. 50%, 54% of our waste gets recycled, reduced, or reused in different form. But now we have a plan for converting at least 40 plants to zero waste. So one is already successful. Now we are in the process of converting that. We have a plan to convert all our plants water positive.
At a group level, we are water positive, but at a plant level, we want to convert the plants as water positive. So these are some of the examples. We have planted 13 million trees. Recently, we completed that, and the 13th million tree was planted by our Chief Minister, Sri Devendra Fadnavis. So these are some of the things. So that's why I told you that I joined NGOs, worked there, and realized that only blaming corporate will not help. We need to do something. And that's how I joined, and I feel that I have done something. I made a difference. And if all corporates come together, they can make a huge difference. And what Dr. Rajendra Singh is saying, for example, this case study he is showing, today there is a place in Damo. Probably, sir, you are one of the inspiration. There is a place in Damo in Madhya Pradesh where we have done a similar case study, and now almost 40,000 people are getting benefited. So these are some of the top level items. There are many more things. You can go to the website to see all the case studies. So thank you so much. I have limited time, so I can. Thank you, sir.